I'm Amna Rizwan. Today we have another panel discussion with our MBA program. Today we have some wonderful panelists with us who are not only our MBA graduates but they are practicing entrepreneurs and they are running their own businesses. Today we have Khurram Abid Mukhtar, Hina Arshad and Talha Asad. So welcome to our MBA program panel. So please guys kindly introduce yourself. So everybody might know that what you are doing right now and what is your business and how you are contributing towards this field. Thank you. My name is Khurram Abid Mukhtar and I'm an MBA student here at UCP. I've worked for 4 years before starting my own business and I realized over the last few years that the real growth is in the business sector. You grow in the job sector too, but there's a fast pace of growth in the business sector here at the moment. Therefore, after extensive research, I have started my organic store through Instagram and Facebook at the moment, but will plan to actually grow and go into the industry itself and open retail stores in future. Okay, and Hina, you? Currently, I'm doing MBA from UCP. Before this, I have done BBA from the same institute, and I'm an entrepreneur. I have started my own business of accessories in 2018. Basically, I have saw a market gap in artificial jewelry, जिसमें गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट में काफ़ी इंक्रीज़ आया था. उसकी वजह से मैंने जब ये गैप आइडेंटिफाई किया तो मैंने अपना इस बिज़नेस में स्टेप इन किया और उसके बाद फर्दर प्रोडक्ट इनोवेशन वगैरह चलती रही साथ साथ. तो थैंक यू. Okay, and Talha, you? This is my third semester in our MBA program. Right now I am running my own business which name is Infinity Games. Basically, first of all, I was selling the products from to the customers after purchasing from the local markets. Now I am directly importing from the two countries. The number one is the Dubai and the second one is the China. जो मैंने गैप आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि मेरा पैशन इसमें बहुत चीज़ रिलाई करता है और मुझे काम करने में अच्छा फील होता है. तो मैंने इसलिए कहा था कि जो चीज़ आपको शौक रखते हो उसी चीज़ को हमेशा आगे परस्यू करना चाहिए. This is my motive. To start with you, Talha, how you identify this opportunity and how you come up with this idea and how you contact with your target market. क्या process था, क्या thinking थी at that time और innovation या जहन में थी या कोई gap identification आपने कैसे की? How do you know कि ये वाला business जो है इसमें I can excel और maybe इसकी growth अच्छी जाएगी? जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बात बताई है कि मैंने चीज़ में पैशन था तो मैंने सबसे पहले मार्केट रिसर्च की थी. जब मैंने मार्केट रिसर्च की थी तो मुझे आइडेंटिफाई ये चीज़ की थी कि इसमें आफ्टर सेल सर्विस कोई भी नहीं कर रहा प्रॉपरली. वो बहुत कम कस्टमर की सुनते हैं. तो मैंने इसको अपना बिजनेस का सबसे ज़्यादा वो एडवांटेज बनाया और इसके तहत मैं आगे टारगेट मार्केट कर सका. जो टारगेट मार्केट है मेरी वो आपके चिल्ड्रन भी हैं, यंग जनरेशन भी हैं और जनरेशन के हैं. मतलब मेल फीमेल हर कैटेगरी लोग गेमिंग इंडस्ट्री पसंद करते हैं. Hina, how MBA graduate program help you in your product innovation and marketing research? बेसिकली MBA में कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू वेंचर, इसमें फर्दर हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान है और स्पेशली जब आप मार्केट रिसर्च करते हो उसके बाद जो एक मेन चीज़ होती है प्रोडक्ट हंटिंग, जो बहुत ज़रूरी होती है. जब तक आप करेक्ट प्रोडक्ट हंट नहीं करोगे तब तक आप फर्दर आगे अच्छी तरह उसको सेगमेंटेशन और फर्दर जो चीज़ें उसमें नहीं आगे लेके जा सकते. तो जब मार्केट गैप आइडेंटिफाई किया और अपना प्रोडक्ट उसमें स्ट्रीमलाइन में लेकर आई तो फर्दर उसके बाद मैंने देखा कि बाकी भी और ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसकी तरफ है. तो आई वॉज नॉट द फर्स्ट मूवर, तो मुझे इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी थी. तो चेंज मैंने काफ़ी चीज़ें की. फॉर एग्जांपल मैं न्यू रेंज लेकर आई प्लैटिनियम प्लेटेड ज्वेलरी की, जिसमें हम बिल्कुल माइनर सी प्लैटिनियम कोट करते हैं ज्वेलरी को और उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है बट वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से हमने उसे स्लोगन दे दिया नेवर फेड. लोग अब प्राइस पे करते हैं किसी चीज़ की तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ये चीज़ ख़राब ना हो. ज्वेलरी आर्टिफिशियल यही होती है, आप कुछ दिन पहनोगे, आप मतलब लेडीज़ को एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, कुछ देर पहनते हो आप यूज़ करते हो तो वो फेड हो जाती है. बट हमारी ज्वेलरी फेड नहीं होती. तो हमने इसी तरह प्रोडक्ट इनोवेशन को साथ साथ लेके चला और फर्दर हम और रेंजेस में लेकर आ रहे हैं.
Good, very good, very impressive. Thank you, So, slogans and marketing strategies. Tala, how do you think? What do you think basically? कि market में आपने online, since you are doing your business online क्या strategies आपने adopt की to that might help you in your running your business? In my previous semester, I had studied the course which name is social media marketing, and I learned many things from my mentor. Basically, he told me that if you want to sell things, you should focus on more video marketing. Nowadays, people like to listen like storytelling things about the products, like why they should buy this product from us. In a video marketing, basically you are going to tell them about the value addition, what are the benefits which you get from this product. जब तक कस्टमर को उसको फ़ायदा नज़र नहीं आता तब तक कस्टमर वो चीज़ परचेज नहीं करते. अब वो आज का जो दौर है कि वो ऑनलाइन किस तरह चीज़ें अडेप्ट करते हो, क्योंकि नाइकी क्या कर रहा है वो भी स्टोरी टेलिंग पे कर रहा है, एडिडास क्या कर रहा है वो भी स्टोरी टेलिंग कर रहा है कि वो किसी फेमस एथलीट को आपस में जोड़ देते हैं. वो कहते हैं कि उसका जो सफ़र कैसे वो एक सक्सेसफुल एक मिशन तक पहुंचा है. तो स्टोरी टेलिंग, वीडियो मार्केटिंग, ये ऑनलाइन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके अडॉप्ट करने के लिए. Your customer market or your customer nowadays is very smart. They are really looking for that product which can really add value to their life, or probably कोई ऐसी चीज़ जो कि value addition की तरफ जा रही है. Why they are going to buy your product if it's not an innovation? कोई पुराना है पहले से है तो why they are going to buy your product, a new product जिसका अभी उन्होंने experience भी नहीं किया. So definitely you need to change, you need to alter, you need to modify your product according to the current situation. इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो your business model is very important. So I might ask खुरम आबिद, आपका क्या business model था? During our MBA studies, उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा emphasize किया गया लेक्चरर्स ने कि आपका राइट बिजनेस मॉडल जो नहीं आपको बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है. और एक स्टडी जब मैंने खुद की बिज़नेस के बारे में या किस तरह वर्क कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के स्टडीज़ जो हमें मिली, उसमें सिर्फ सोल फोकस था बिजनेस मॉडल पे कि आप एक वैल्यू चेन बनाएं, ऐसा वैल्यू चेन बनाएं जिसमें हर पॉइंट पे वैल्यू ऐड हो रही हो आपके बिज़नेस के अंदर. अब सबसे पहले चीज़ मैंने देखी सोर्सिंग. अगर सोर्सिंग आप देखें तो सोर्सिंग आपको एक सप्लायर चाहिए, कंसिस्टेंट सप्लायर चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, और दूसरी चीज़ है कि टाइम लगना है आपकी सप्लाई में कि आपकी सेल्स आके लॉस सेल्स आपकी ना हो रही हैं आपको, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ लॉस है आपके लिए. सेकेंडली उसके बाद मैंने जो बनाया कि प्रोडक्शन लाइन के अंदर किस तरह आपकी वैल्यू ऐड हो सकती है, किस स्टेज पे किस तरह ऐड होगी. अगर फॉर एग्जांपल आप कह लें प्रिंटिंग से लेके आप बॉटल से लेके बॉक्सिंग से लेके हर चीज़ में अगर आप प्रॉपर वैल्यू चेन बनाया हुआ और हर स्टेप पे आप क्वालिटी चेक कर रहे हो तो आपका बिजनेस मॉडल टूवर्ड्स मतलब आप इम्प्रूवमेंट के होते हैं. आपके हर वैल्यू आपकी एडिशनली ऐड हो रही होती है हर स्टेज पे. उसके बाद डिलीवरी टू द कस्टमर, मार्केटिंग जो आप करते हैं कस्टमर के लिए, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट इन दीज टाइम्स. मार्केट अगर आप प्रॉपरली नहीं करेंगे, क्वालिटी तो आपकी मैटर करती है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी बना रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें मैंने बिजनेस से एक मॉडल बनाया और उसको फिर मार्केट में प्रॉपरली करा. Khurram, there is one more thing. This is what we call is product differentiation. How you differentiate your product from other products. Probably there are many products in the market. आपने कैसे differentiate किया? आप कैसे innovative हैं? Value क्या add किया आपने in the current products? Ma'am, in the current situation and in the current scenario, there are a lot of online organic stores. And most of them, I'll not name any, but most of them are selling chemical based products as organic products. तो अगर मैं proper organic store बना रहा हूँ और मैं product organic नहीं रख रहा तो वो short term है. मैंने pure organic रखे काफ़ी चीज़ें जो है, for example, if something is costing me around 20,000 a kg, and the same thing that is chemical based is costing around 300 rupees per kg. So there's a lot of difference. You can earn a lot more अगर आप सस्ती चीज़ ले रहे हैं, but ये कि वो एक differentiation नहीं create कर रहा, आपका brand image नहीं create होगा, बिकॉज रिपीट कस्टमर्स आपके नहीं आएंगे. उन कस्टमर्स को पता चल गया हुआ बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में.
और इस वक्त ये है कि मेरा एक क्वालिटी पे डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करूँगा। सेकेंडली ये कि ऑर्गेनिक स्टोर सिर्फ ऑपरेट करें ऑनलाइन। मेरा जो अभी नेक्स्ट स्टेप पे प्लान है कियोस्क डिफरेंट मॉल्स में जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है उनको पोर्ट्रे करूँगा, उनके शेयर करूँगा थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट एज वेल ऑल्सो थ्रू TV चैनल्स एंड एवरीथिंग। मतलब एक तो सोशल मीडिया हो गया आपके मार्केटिंग के लिए, एक सेकेंडली ये है कि आपके अगर मैं एड्स बनाता हूँ तो उसमें मेरा ये है कि आपके प्रोडक्ट तो आप बता रहे हो बट ये कि कस्टमर रिव्यूज़ के, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज मार्केट। अब बॉडी शॉप पे आप लोगों सारों का ट्रस्ट है, अब वो ट्रस्ट जो है मैं भी डेवलप करना चाहता हूँ। बॉडी शॉप हर चीज़ में डील नहीं कर रहा, मेरे प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट भी हैं इसमें, तो ये कि एग्जैक्टली वो मॉडल नहीं है बट ये कि मेरा जो है एक इमेज और एक जो पोजीशन है मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें लोगों को ट्रस्ट हो। Khurram, I saw your hard work when you have some testers and you जो है वो आप जाते थे और आप जाके डोर टू डोर और कैबिन टू कैबिन वो टेस्टर आपने टेस्ट कराए और फिर आपके जितनी भी टारगेट मार्केट थी तो सो आपका वो भी प्रॉब्लम मुझे शायद आपको खुद भी याद नहीं है, वो जो आपने टेस्टिंग कराई थी और वहाँ से आपकी टारगेट मार्केट से जो आपको फीडबैक आया था उसने आपकी बहुत हेल्प की थी। आई रिमेंबर, मुझे याद है 4-5 मंथ्स जब अभी कोविड के टाइम से पहले की बात है जी। तो सेम क्वेश्चन गोज टू तलहा एज वेल। तलहा, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग और सोर्सिंग की बात हो रही थी, सो कितना हेल्प किया है आपको इस प्रोग्राम ने, MBA ग्रेजुएट प्रोग्राम ने, ब्रांडिंग में, पोजीशनिंग में और फिर सोर्सिंग की बात हो रही है उस पर? मैम काफ़ी कुछ मुझे इसमें चीज़ में हेल्प किया हुआ है, जैसे कि कुछ काफ़ी कुछ मैं कहूँगा कि पहले टीचर्स का हाथ है क्योंकि टीचर्स ने काफ़ी कुछ मुझे लर्न कराया है जिसकी वजह से मुझे पता चल सका कि किस तरह अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, किस तरह आप इनोवेशन ला सकते हो मार्केट के अंदर और अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो ब्रांड पोजीशनिंग क्या होती है बेसिकली, इसका तो आप मतलब समझे, ब्रांड पोजीशनिंग ये होती है कि आप कस्टमर क्या परसीव कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन आप इसका एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर सकते हो। वो तभी क्रिएट कर सकते हो कि कस्टमर जो चाह रहा है वो उसको वही चीज़ प्रोवाइड करो टू द राइट टाइम, टू द राइट प्लेस, एट द राइट कस्टमर। ये हमें चीज़ बार-बार MBA में पढ़ाई जा रही है, तो मैंने इसके तहत एक अपने जो ब्रांड इमेज है वो मैंने अच्छी क्रिएट की है, पोजिशनिंग की है। वेरी वेल सेड। प्रॉब्ली आप अपॉर्चुनिटी विंडो की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उस वक्त जिस वक्त मार्केट की रिक्वायरमेंट थी और फिर उस वक्त जिस वक्त आप प्रॉफिट जनरेशन की बात आ रही थी। सो अच्छा तो इसमें सारा हो गया। अब कोविड के टाइम पे आ जाते हैं, लेट्स कम बैक टू दैट, वो कोविड पीरियड जिसमें देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड। प्रॉब्ली यू पीपल आर रनिंग योर बिजनेसेस, few of you, 2 of you probably run your business online, but yes, there were a lot of difficulties, challenges थे। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगी क्या challenges थे and how you overcome those challenges। 3 of you, पहले तो हिना से पूछते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स में अगर देखा जाए ना, कोविड की वजह से ई कॉमर्स में एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कह ले। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को नहीं प्रमोट किया जा रहा था पहले, तो जैसे कोविड था, लॉकडाउन था और सब शॉप्स वगैरह बंद थी, तो लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया कि हम परचेज़ करें ऑनलाइन। तो उसके लिए भी हमें भी थोड़ा सा उनके साथ उनकी ईज़ के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बिल्ड करनी पड़ी। हमने उनकी ईज़ के लिए अपनी प्राइसेस रिड्यूस कर दी ताकि वो उनकी फ़र्स्ट चॉइस हम रहे। प्राइसेस का ऑब्वियसली इकोनॉमी में डिफरेंस आ रहा था और इकोनॉमी नीचे जा रही थी, प्राइसेस वगैरह का भी लोगों को इशू था, तो हमने अपनी प्राइसेस रिड्यूस किया। हमने दूसरी कैंपेन्स वगैरह साथ साथ चलाई, हमने MNH कलेक्शन में अपनी डील्स वगैरह निकाली और उसके अलावा हमने जैसे फ्री मास्क वगैरह, सेफ्टी प्रोडक्ट्स, सैनिटाइजर वगैरह उनको फ्री में देना स्टार्ट किए। इससे हमारी सेल इंक्रीज हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो मार्च से अब तक चल रहा है, इसमें हमारी सेल इंक्रीज हुई और इसमें हमें फ़ायदा भी काफ़ी हुआ। चैलेंजेस में अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज की साइड से मेरे बिजनेस में कुछ चैलेंजेस थे क्योंकि रीस्टॉक चीज़ें करनी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती थी और रीस्टॉक करना, न्यू कलेक्शन लेकर आना, उनमें थोड़े से चैलेंजेस थे, बट वो हमने ओवरकम कर लिए थ्रू ऑब्वियसली हमारे जो सप्लायर्स वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट करके वो हमने ओवरकम कर लिए। लेकिन ओवरऑल जो था रिस्पांस सेल्स के अगर उससे देखा जाए तो वो बहुत पॉजिटिव था कोविड पे मेरे लिए। खुरम,
मैम मेरे लिए फर्स्ट जो चैलेंज आया वो ये था कि डिस्करेजमेंट मिलती है आपको लोगों से। बहुत दोस्त आपके इनकरेज भी करते हैं बट काफ़ी लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं। अब ये कि मुझे दैट वाज अ टफ टाइम, कोविड का जो टाइम था जी। वो उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रॉपर्ली जाना ही नहीं चाह बिल्कुल रहा भी था, नहीं। कुछ नया काम करना ही नहीं चाह रहा था। मुझे बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो यही कह रहे थे कि अभी नहीं करना है, आप ये कोविड का टाइम खत्म होगा इसके बाद फिर, और जिनके थे उनके शट डाउन हो, ऑनलाइन वाले तो फिर भी कुछ चल रहे थे, बट जो दूसरे बिजनेसेस थे उस वक्त क्या आप चैलेंजेस क्या थे और फिर क्या स्ट्रेटजी? मैम ड्यूरिंग कोविड मेरा वो टाइम था जब मैंने इंट्रोड्यूस करना था, मैंने स्टार्ट लेना था। जैसे ही मेरी मतलब मार्केट रिसर्च कंप्लीट हुई, प्रिंटिंग सब कुछ हुआ, अब ये कि सोर्सिंग वाला जो मेन फाइनल स्टेप्स कुछ रह गए थे, तो कोविड आ गया, मार्केट्स क्लोज्ड और मुझे अब सप्लाई से ले नहीं सकता था। इन अ वे इट काइंड ऑफ हेल्प मी बिकॉज उसमें ये था कि मेरी रिसर्च और स्ट्रांग होती गई, मुझे पता चल गया मैंने प्रोडक्ट्स क्या करने हैं। मैंने अभी इनिशियली ऑर्गेनिक एरा में एसेंशियल ऑयल्स या हेयर ऑयल वगैरह किए हैं, बट in the next week I am introducing serums, in the week after I am introducing masks, in the week after that I am going to introduce lip balms and creams. So I've planned everything over this period of time, but ये के challenges आपको एक तो properly guidance शुरू में नहीं होती, आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको exposure लेना पड़ता है। I've met a lot of people during this research, people who are selling the same product, जो कि मुझे पता है ऑर्गेनिक नहीं है, I've said this before. आपको पता चल जाता है मार्केट में किस तरह आप डिफरेंशिएट किस तरह कर रहे हैं। वो एक चीज़ आपके एक जगह आपको अट्रैक्ट कर रही होती है चीपर कॉस्ट सोर्सिंग, एक जगह आपको होता है कि यार ये मैं कॉस्ट एक्सपेंसिव मुझे पड़ेगी अगर मैं इसे लूँगा। तो वो आपको एक माइंड बिल्डअप करने में और आपको एक मॉरल अपना सेट करने में कि ये लाइन है, मैंने यहाँ से ऑर्गेनिक अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं ऑर्गेनिक ही दूँ, ये नहीं कि मैं दूसरा प्रोडक्ट दूँ। वो चैलेंजेस होते हैं आपके हर पॉइंट पे होते हैं। मार्केटिंग है उसमें चैलेंज है, आपको लोगों को कांटेक्ट करना है थ्रू पीआर पैकेजेस एंड एवरीथिंग, उनको ढूंढना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेज। मतलब मेरा फॉर एग्जांपल आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ फंड्स एट द मोमेंट एट दैट टाइम पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें ये कि आपको हर चीज़ का डिज़ाइनिंग से लेके फ़ोटोशूट से लेके हर चीज़ पे आपकी बहुत कॉस्ट आ रही होती है कि एक प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर चार्जिंग 5,000 रुपीज़ एंड आई नीड 5 or 6 पिक्चर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, तो मेरे अगर 14 प्रोडक्ट्स इस वक्त अभी हैं, तो अगर आप उसको देखें तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी अराउंड 300,000, मतलब सिर्फ फ़ोटोशूट का। तो आपको बहुत डिसीजंस, बहुत ज़्यादा कस्टमर के साथ रीच कैसे करने हैं, उनसे इंटरेक्ट किस तरह करना है, वो आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है। I've learned a lot of things. I've learned Photoshop. I've learned the marketing strategies, how to market the product online, how to source them, how to import products. तो वो बहुत चीज़ें डिफ़िकल्टी आई है, और ये कि कोविड ने हेल्प तो ज़रूर की है, बट इट हैज़ एक्चुअली डिलेड अ लॉट ऑफ माय वर्क, मतलब जो मैं पहले कर सकता था। आप बताइए तलहा, मैंने व्हेन आई वाज कनेक्ट विद यू और आपने मुझे बताया कि मैम बिजनेस तो अच्छा जा रहा है, तो इट वाज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। बिजनेस कैसे अच्छा जा रहा था, आपने क्या चैलेंजेस नहीं आए, या आपने चैलेंजेस जो है ओवरकम बड़े अच्छे तरीके से किए? सबसे पहले मैं आपको एडवांटेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखें, कोविड जब 19 आया था, कुछ बहुत सारे बिजनेस थे जो बहुत जल्दी बंद हो गए थे, लेकिन कोविड 19 की वजह से बहुत सारे बिजनेस हैं जो चल भी गए थे। अब जैसे कि मैं बिजनेस मेरा है गेम्स के रिलेटेड, अब हर बंदा छुट्टियां हो रही हैं, चाहे क्या नाम है कॉर्पोरेट सेक्टर हो, यूनिवर्सिटी सेक्टर हो, हर जगह लोगों को छुट्टी हो रही है। अब लोग घर बैठे बोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार हमें गेम खेलनी है, तो गेम की डिमांड जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो आप कह लें कि 10% ज़्यादा वो बढ़ गई। इंटरेस्टिंग। और उस टाइम मेरे जितनी सेल्स हुई हैं, वो मैंने पिछले सालों की सारी सेल्स रिकॉर्ड ब्रेक कर दी है। अब उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस टाइम प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया, क्योंकि आपकी जो एक तो मेरी आइटम जो है वो लग्जरी गुड है, और बेसिकली मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो उस टाइम इंपोर्ट सारी बंद हो गई थी।
तो इसकी वजह से मेरे पास जितना स्टॉक कटा हुआ था वो एक तो बहुत अच्छे प्रॉफिट रेशियो से निकल गया। दूसरा मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि मुझे चैलेंज जो फेस करने पड़ गया था वो ये था कि इंपोर्ट बंद हो गई थी, अब डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब समझे कि जो 1 महीने का मेरे पास माल था वो 2 हफ्ते में निकल गया, अब मेरे पास 2 हफ्ते खाली हाथ था। अब मैंने इसके चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया था कि मैं यूज आइटम पे मैं फोकस ज़्यादा करने लगा था, क्योंकि नए आइटम तो आप इंपोर्ट कर नहीं सकते। अब यूज आइटम में फोकस इस तरह कर रहा था कि मैं डिफरेंट शहरों को टारगेट करने लग गया कि आप अगर आपने सेल करना है तो कोई ना कोई मैंने अपना रिसोर्स निकाल के मैंने कहा कि आज आप गुजरावाला से हैं, गुजरावाला में घर पे आप आ जाएं या इस फलान लोकेशन पे आ जाएं, वो आपको पैसे दे देगा और प्रोडक्ट दे दें। इसी तरह मैं सारे प्रोडक्ट डिफरेंट शहर से मैं जोड़ता रहा और अपनी डिमांड को पूरी करता रहा, यानी कि मैं अपने बिजनेस को लॉस में नहीं करने गया। जितना ग्रो कर सकता था, जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकता था, मैंने उस टाइम अपने बिजनेस को दिया है, तो मेरा बिजनेस इसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। I have an important question for all of you. During this MBA degree, बहुत कम लोग सोचते हैं हमने बिजनेस करना है और बिजनेस एस्टेब्लिश भी कर लिया। एंटरप्रेन्योर स्किल्स ने, एक तो पहला सवाल तो मेरा ये कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स आपकी कैसे पॉलिश हो गई इतने इस अरसे में? कैसे इस ग्रेजुएट प्रोग्राम ने आपको हेल्प किया? आउटकम बेस्ड लर्निंग थी या प्रैक्टिकल आउटकम था उसका? आप फील्ड में कैसे चले गए और गैप कैसे आपने फिल कर लिया? और इस सडन एज में अभी आप सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं, वो भी कभी नहीं सोच रहे होते हैं, बस आपका फोकस आपकी डिग्री के ऊपर होता है। आई नो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, 3 ऑफ यू, तीनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं और उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया। एक तो ये कैसे किया आप लोगों ने, क्या इंस्पिरेशन थी, और दूसरा ये कि आपने कैसे बैलेंस कर लिया दोनों चीज़ों को, स्टडीज़ को भी और बिजनेस को भी, और दोनों बड़े सक्सेसफुली लेके चले हैं। यू 3 आर वेरी गुड स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ आप लोग बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सो आप बाकी लोगों के लिए यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कैसे किया आपने ये सब? थैंक यू मैम। बेसिकली ये है कि कुछ मेरा मेजर मार्केटिंग है MBA में, तो उसमें सब्जेक्ट है ई कॉमर्स। मुझे फैसिनेट कर रहा है डायरेक्टली कि मैं जो मेरा बिजनेस है ना उसको उस पर इम्प्लीमेंट करूँ। मैं थ्योरी तो पढ़ रही हूँ, साथ साथ सब कुछ पढ़ रही हूँ कि फॉर एग्जांपल 4 Ps क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, SEO क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, हमें टारगेट मार्केट्स कैसे सेट करनी है, हर चीज़ हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस आता है उसमें वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना फेसबुक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पेज बना लिया, उस पर मुझे कैंपेन्स बनानी है, उनको रन करना है, उन पे A/B टेस्टिंग करनी है, टेक्निक्स यूज़ करनी है कि कौन सी सेगमेंट मेरे बिजनेस के लिए ज़्यादा बेहतर है। समटाइम्स हम सोचते हैं कि नहीं ये वाला बिजनेस है, ये वाली टारगेट मार्केट इस पर सही रहेगी, बट एक्चुअल आपको तब पता चलता है जब आप उसमें स्टेप इन करते हो और आप उसमें टेस्टिंग करते हो, टेक्निक्स यूज़ करते हो, एक्सपीरियंस से आपको फिर पता चलता है। तो MBA में यही है कि साथ साथ जो हमने बुकिश नॉलेज भी साथ साथ गेन किया है उसको ही इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस पे, तो उसने हमारी स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को। और पॉलिश करने के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिल रही है इवन ड्यूरिंग द स्टडीज़। तो इसमें कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है मेरे लिए कि आप स्टडीज़ को भी मैनेज करो और साथ साथ बिजनेस को भी। इवन ये एक फ़न है, इसमें हम इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ आज जाके उसको मैं रात को देखती हूँ, उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में फिर सोचती हूँ। वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजी, कंटेंट हमें पता ही नहीं होता पाकिस्तान में कि क्या होता है कंटेंट। हमने डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दो, कुछ भी यूज कर लो, नहीं कंटेंट बहुत जरूरी है, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। एक एक चीज हमने वीडियो मार्केटिंग, हर चीज इनको हमने पढ़ा है कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, किस तरह जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंजॉय करती हूँ मैं अपने स्टडीज के साथ और बिजनेस को साथ लेकर। वेरी इंस्पायरिंग। सिंस अगर आप पैशन बना लेते हैं कोई चीज़ तो वो आपको वाकई यू स्टार्ट लविंग योर जॉब और मे बी बिजनेस जो भी है वो आप उसी तरह उसको उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। सो तला, व्हाट अबाउट यू? बेसिकली मैं जब मेरा ये शौक है, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ बिजनेस का वगैरह, तो मेरा जो एक चीज़ का पैशन है वो मार्केटिंग का भी है सब्जेक्ट के वाले से। अब मैंने मार्केटिंग के मैंने काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिसकी वजह से मेरे काफ़ी एंटरप्रेन्योर स्किल्स पॉलिश हुए हैं मुझे। जैसे कि मुझे पता चला कि पुश स्ट्रेटजी क्या होती है, पुल स्ट्रेटजी क्या होती है। पुल स्ट्रेटजी आपकी ये होती है कि मतलब प्रोडक्ट आपका इतना अच्छा है कि कस्टमर खुद आपके पास आता है। पुश स्ट्रेटजी वो होती है कि आपको पता है कि आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के जरिए हो या प्रमोशन के जरिए हो। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और मुझे पढ़ाई से ये फ़ायदा ये होता था कि जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ
वही मैं लर्न भी कर रहा हूँ थ्योरेटिकल फॉर्म पे। अब मुझे जो नई चीज़ें सीखता था वही मैं उसी टाइम एट द स्पॉट प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, और जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी मैं अपने टीचर से वहीं उसी टाइम गाइडेंस ले लेता हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फन है, क्योंकि आप जब इस चीज़ को एंजॉय करते हो काम करते हुए तो आपको बर्डन फील नहीं होता। For a certain period of time, Khurram, you were working for a corporate firm also. So you were probably you were entrepreneur also. So entrepreneurship ने कैसे आपकी entrepreneur skills को improve किया? Ma'am, I was in construction business before. उसके बाद ये कि उसके स्टडीज़ की वजह से छोड़ना पड़ा मुझे, और दूसरा ये कि एक आध चीज़ मैंने ऑनलाइन और स्टार्ट की थी। टाइम और फोकस नहीं था मेरा उस टाइम पे। Over a period of time you realize कि if you're putting so much effort in the job, why don't you put it for yourself? मतलब आप हमेशा जॉब में यस सर और वो आप उस चीज़ में जा रहे होते हो कि जो कहेंगे आप करोगे, 9 घंटे आप काम करोगे। अगर 9 घंटे आप अपने लिए काम करो, दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। कोई आपकी रिटायरमेंट एज नहीं है, यू कैन ग्रो रियली फास्ट। अब एक दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, तो उसने मुझे ये कहा कि ही इज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स। तो कहते हैं यार मुझे एक चीज़, तो मेरे पास इन्वेस्टर्स आते हैं, तो व्हाट मैटर्स मतलब व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आई टोल्ड हिम दैट आई डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीवन एल्स, आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ। मतलब अगर जॉब में भी है तो ये इस तरह का मेरा एटीट्यूड नहीं रहा हमेशा कि ओके सर यस वाला। मेरा माइंडसेट ही हमेशा बिजनेस वाला था। बट ये कि मैं ये कहूँगा कि हमेशा हमारे लिए डिफ़िकल्ट ये होता है स्टार्ट करने बिज़नेस, कि मैं किस तरह करूँगा, मेरे पास फंड्स नहीं है। तो वो एक चीज़ आंसर नहीं है आपके, कि आपकी प्रॉब्लम्स आंसर नहीं है, आपको एफर्ट करना पड़ता है। और वही चीज़ मैंने की है। मैं मार्केट रिसर्च की, मैं मार्केट्स घूमा, आई लुक फॉर मतलब ऑनलाइन, आई रिसर्च ऑनलाइन फॉर आवर्स। मतलब मैं लिटरली 4 आवर्स में सोया हूँ स्टार्ट करने से पहले फॉर मंथ और 2। मतलब जिसमें मेरा सिर्फ काम था, मैं हर चीज़ देख रहा था, ट्रेंड्स देख रहा था, कमेंट्स देख रहा था, लाइक्स देख रहा था कि किस लोग तरह के और क्या चीज़ ट्रेंड के। सेकेंडली MBA डिग्री के अंदर हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा इग्नाइट करती है ना आपको कोई चीज़ स्टार्ट करने में, वो मुझे इग्नाइट की केस स्टडीज़, डिफरेंट केस स्टडीज़ हमारे साथ शेयर की कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में के जो कोर्स था उसमें आपको एक स्टोरी हर बिजनेस की समझते हो। हम लोग क्या देखते हैं, एंड ऑफ द बिजनेस। हम लोग ये स्टार्ट नहीं देखते कि स्ट्रगल क्या है इसके पीछे, टाइम कितना लगाया हुआ है। हम लोग देखते हैं 5 years 10 years के बाद का रिजल्ट। हम लोग ये नहीं देखते कि फॉर द फर्स्ट 2 years 3 years उसको क्या रिटर्न मिल रहा है, वो किस स्टेज के थ्रू गुजर रहे हैं। वो एक चीज़ एक्सेप्ट मैंने की कि जो भी हो जाए, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो उसमें लगे रहो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप MTO प्रोग्राम में जा रहे हो, तो फॉर 3 years यू आर एन MTO और एट ए रियली जूनियर लेवल जॉब। तो अगर आप बिजनेस में भी आप कम कमा रहे हो या इवन नहीं कमा रहे, यू बिल्डिंग योरसेल्फ समथिंग जिस पे आपका अपना होल्ड होगा, और वो आप उसको बाद में जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल होगा बहुत डिफरेंट होगा। Absolutely right. So rather than the job seekers, you might like job creators. So Exactly. probably you are creating jobs for some other people who really. एक और चीज़ मैं उनकी बात में मैं ऐड करना चाहूँगा। मैंने जो पिछला सेमेस्टर है जिसमें मैं चीज़ पढ़ी थी, कोर्स था एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग पे। उन्होंने हमें एक केस स्टडी, जो मेरी टीचर थी उन्होंने काफ़ी केस स्टडी हमें क्लास में करवाई थी। उससे मुझे ये फ़ायदा ये हुआ था कि बाज़ दफ़ा जो प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो रही थी उस टाइम एट द एक्चुअल टाइम पे, वो मुझे उसके सॉल्यूशंस मिले। अब ये केस स्टडी जो पढ़ाते हैं, जो प्रैक्टिकल बात है कि आपके रियल लाइफ इवेंट्स है कि किसी को कोई मुश्किल आ रही है कंपनी में या कोई नुकसान हो रहे हैं, अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करने का वो मौका मिलता है तो आपके एंटरप्रेन्योर स्किल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं MBA प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज़ थी कि मतलब केस स्टडी आपको करनी चाहिए और इससे काफ़ी कुछ सीखता है बिजनेस पे। Thank you. Such an inspirational talk. Keep inspiring everyone. एक लास्ट क्वेश्चन है आप तीनों से मेरा, नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं MBA ग्रेजुएट प्रोग्राम में, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे इस हवाले से? एक मैसेज दें। मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप जो नहीं है स्टार्ट एक बार ले लें।
आप मार्केट, आपको आइडिया है, आप मार्केट जाएं, जस्ट लुक इनटू इट, मतलब डू सम रिसर्च. आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको वो आइडिया क्लिक नहीं करता, दूसरा क्लिक कर जाएगा. और ये कि हमेशा हम लोगों का ये होता है कि डरे रहते हैं घर में, हम कंफर्ट में रहते हैं. लाइफ या आप ग्रो कभी आप कंफर्ट में रह के नहीं कर सकते. यू हैव टू पुट इन योर स्ट्रगल, योर एफर्ट, योर टाइम इनटू समथिंग टू गेट द रिजल्ट्स. आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती और स्टार्ट ले दो, इट्स ईजी, मतलब आपको आदत हो जाती है. मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम स्टेइंग आउट फॉर 12 आवर्स तो काम के लिए, और घर आके भी फिर आई पुट इन 3 to 4 hours इनटू इट, क्योंकि मुझे पता है ये स्टेज है स्ट्रगल की. आप और बाय द एज ऑफ 40-45 आई वांट टू रिटायर, मतलब मेरी चीज़ चल रही हो, आप रिलैक्स करके पीछे बैठे हुए हो, यू नॉट गोइंग टू पुट इन स्ट्रगल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जॉब में आप कंटिन्यूसली चल रहे होगे 60 तक. है ना. मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप फेलियर से मत डरें, क्योंकि मतलब जब तक आप किसी चीज़ में फेल नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे. तो फेलियर से तो बिल्कुल भी मत डरे. अगर आपका किसी चीज़ में पैशन है, बस समटाइम्स ये होता है हम कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको आगे लेके कैसे जाना है, कोई हमें सिखा दे. मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी को ऐसा बनाना है कि आप ही हमारे बदले काम करो, नहीं. आपको मेंटोर की ज़रूरत है. आप मेंटोर लें साथ, उससे गाइडलाइन लें, उससे सीखें, उससे पूछें. बहुत ज़रूरी है मेंटोर का होना. तो आप किसी को अपना मेंटोर बनाएं और उसके साथ साथ अपने बिजनेस में उससे सजेशंस लेकर अपने आप को ग्रो करें फर्दर. लेकिन ये कि फेलियर से बिल्कुल भी मत डरें. इसमें कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान को इस ई कॉमर्स मार्केट को हमने ही लेके चलना है फर्दर आगे. अब इंशाल्लाह दिसंबर में सुना है कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है. उस पर हम आगे फर्दर काम कर सकते हैं, स्टोर्स बना सकते हैं. तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट ये कि हमें अवेल करनी है अब, और उस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त. तो सब MBA ग्रेजुएट, BBA ग्रेजुएट्स को, MBA ग्रेजुएट्स को ये मैं कहूँगी कि आप लोग अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें. जी तला. मेरा जो मैसेज है स्टूडेंट्स को, जो यंगस्टर्स हैं जो कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मैं इनको ये कहूँगा कि यार स्टडी कंप्लीट होने का वेट ना करो, स्टडी के दौरान ही कुछ काम करना शुरू कर दो. अब बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने इनको जो देखा है, जो उनका पैशन कुछ और होता है लेकिन काम कुछ और कर रहे होते हैं. मैं यही कहूँगा कि ना, अगर आप लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने पैशन को हमेशा प्रोफेशनल वे से ट्रीट करो, तभी आप कामयाब हो सकोगे. जो चीज़ में शौक है हमेशा वो काम करना चाहिए. आप मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कहते हैं कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन समझ नहीं आ रही किस तरह बिजनेस स्टार्ट करूँ. मैं इनसे एक चीज़ का पूछता हूँ, यार तुम्हें शौक किसका है? राइट. वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें पता नहीं किस चीज़ का शौक है. मैंने कहा सोचो कि तुम्हें क्या करना पसंद है. तो हम अगर लाइफ में 24 आवर्स तुम्हें मिलते हैं, तुम उन पर 24 आवर्स किस में तुम 15 घंटे या 14 घंटे तुम लगाना पसंद करोगे. मैंने कहा अगर तुम्हें ये चीज़ आइडेंटिफाई तुमने कर ली कि किस चीज़ पे मेरा शौक है, उसमें मैं टाइम देना पसंद करता हूँ, उसी चीज़ का तुम्हें बिजनेस करना चाहिए. सोसाइटी की मत सोचो कि ये तुम कहेंगे ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये चीज़ है. हर बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है. I think we have learned a lot from you three people. Number one is, जो मुझे लगा जो आज की सारी पैनल डिस्कशन थी उसमें, number one is you should remain passionate. एक तो make your interest कन्वर्ट इनटू योर पैशन और उसी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करें. तो प्रॉब्ली आप ज़्यादा एक्सेल करते हैं बिकॉज यू आर स्टार्टिंग लविंग योर प्रोफेशन और जो भी बिजनेस है या जो भी एनीथिंग यू आर डूइंग. एक नंबर टू इज मेंटोर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. प्रॉब्ली वो आपके फैमिली मेम्बर है, प्रॉब्ली आपका कोई बड़ा है, कोई आपका टीचर है, कोई बिजनेस से रिलेटेड है, कोई कंसल्टेंट है, एनी वेंचर कैपिटलिस्ट है जहाँ से आपको फंडिंग की भी बात आएगी. तो यस. और फिर thirdly, जी जी मैम, there's a common problem with the students कि हम लोग consistent नहीं हैं. हम लोग हर चीज़ को हाफ वे छोड़ देते हैं. जो भी करें हाफ वे इतना छोड़ें. डोंट लूज होप. आपके इस्लाम में भी यही चीज़ है कि होप नहीं लूज़ करनी. तो ये हमारे बहुत कॉमनली होता है, हम लोग हाफ वे चीज़ करके छोड़ देते हैं. आप ट्राई करें for a bit longer, देखें क्या बनता है. That's it. Very impressive. During this COVID period, probably you come up with
फ्लाइंग कलर्स, आप लोगों ने सारे सेटबैक्स को जो है वो भी स्ट्रेटजी बनाई और अपना बिजनेस जो है उस दौरान भी आपने कंटिन्यू किया. सो यू आर अ रियल एग्जांपल of an entrepreneur for all those students who are our MBA graduates or all other students in this university, while you are doing your degree and you are running your own business, you are enjoying your business, this is probably your passion and you are source of inspiration for all those students जिनको लगता है कि शायद probably अभी टाइम नहीं आया. सो राइट टाइम तब है जब आपको खुद से रियलाइज हो जाता है कि what is your right direction. Thank you very much for coming in this panel discussion. I really enjoyed your panel discussion. बहुत कुछ जो भी लोग इसको देखेंगे वो इससे सीखेंगे. Keep inspiring your fellows, your friends, your teachers and everyone who really want to be in this field, and you are the real entrepreneurs. Thank you very much, Thank you so much. Hina, Thank you. Talha. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So we'll end up our today's panel discussion here with our three wonderful panelists. They are source of inspiration for everyone. They are job creators rather than the job seeker. We will continue these MBA graduate program panel discussions to add value to our MBA program. Thank you very much and Allah Hafiz.